Hello everyone. In this video, we will continue further the topic methods of capital budgeting, and here we will understand improvement of traditional approach to payback period method. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's understand the topic. In the earlier videos of capital budgeting, we discussed the meaning and concept, importance of capital budgeting process, and kinds of capital budgeting decisions. In the previous video, we started with the methods of capital budgeting and understood the payback period method. So I recommend you to watch all the related videos of capital budgeting to understand the further topics fully. There are two kinds of methods of capital budgeting: traditional methods and time adjusted method or discounted methods. In the earlier video, we have already discussed the payback period method in the traditional methods, and here we will understand improvement of traditional approach to payback period method. So let's start with it. The payback period method discussed earlier has some limitations. And what are these limitations? Like, it does not consider the cash inflows earned after the payback period. It ignores the time value of money. So these limitations of payback period method are removed in improvement of traditional approach to payback period method. And improvement of traditional approach to payback period method can be used in different ways, like post payback profitability method, payback reciprocal method, post payback period method, and discounted payback method. तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक मेथड की डिफरेंट वेज हैं. ये वेज रिमूव करते हैं, इन डिफरेंट मेथड्स में रिमूव की जाती है वह सभी लिमिटेशंस जो कि पेबैक पीरियड मेथड में पाई जाती हैं, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पेबैक मेथड में कंसीडर नहीं किया जाता. इसके अलावा पोस्ट पेबैक पीरियड में मींस पेबैक पीरियड के बाद जो कैश इनफ्लोज अर्न किए जाते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता. सो इन सारी लिमिटेशंस को रिमूव किया जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक मेथड्स में. So let's discuss each one of these methods in the further slides. Firstly, we'll start with the post payback profitability method. One of the serious limitations of payback period method is that it does not take into account the cash inflows earned after payback period. Therefore, true profitability of the project cannot be assessed with the payback method. Hence, an improvement over payback period method can be made by taking into account the returns receivable beyond the payback period. And these returns are called post payback profits. पेबैक पीरियड मेथड की एक लिमिटेशन है कि इसमें पेबैक पीरियड के बाद जो कैश इनफ्लोज अर्न किए जाते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता. इसकी वजह से प्रोजेक्ट की सही प्रॉफिटेबिलिटी असेस नहीं की जा सकती. सो यहाँ पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड इस लिमिटेशन को रिमूव करता है और यहाँ पर पेबैक पीरियड के बाद जो भी रिटर्न्स अर्न किए जाते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, और जो रिटर्न्स हम पोस्ट पेबैक पीरियड में अर्न करते हैं उनको कहा जाता है पोस्ट पेबैक profits. So how we will calculate the post payback profitability index? The formula is post payback profits divided by investment in the project into 100. पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स वह प्रॉफिट्स जो कि पेबैक पीरियड के बाद अर्न किए जाते हैं, जैसे इसके नेम से ही क्लियर है, मींस पेबैक पीरियड के बाद जो हमने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, कैश आउटले है जो प्रोजेक्ट का, से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100 itself denotes that this index is calculated in terms of percentage. So let's understand how we will calculate the profitability index with the help of an example. For each of the following projects, compute payback period method, post payback profitability, and post back profitability index. These we will have to compute, and what is given here? We are given two cases, case A and case B. In case A, initial cash outlay is given rupees 50,000, and annual cash inflow after tax but before depreciation is 10,000, and estimated life is 8 years. केस ए में इनिशियल कैश आउटले गिवन है 50,000, कैश इनफ्लो यहाँ पर 10,000 है, और ये 10,000 कैश इनफ्लोज
कॉन्स्टेंट कैश इनफ्लोज है, मीन्स हर साल इक्वल कैश इनफ्लोज जनरेट हो रही है। एस्टिमेटेड लाइफ है 8 ईयर्स प्रोजेक्ट। केस बी में भी कैश आउटले 50,000 गिवन है। Annual cash inflow after tax but before depreciation are given, but here the cash inflows are not constant, they are not equal. In the first 3 years the cash inflows are rupees 15,000, in the next 5 years these are rupees 5,000. Estimated life is 8 years, salvage value is 8,000. Salvage value means estimated life project की complete होने के बाद जो उसकी scrap value रहती है, that is called salvage value. जैसे कि मशीन को हमने 8 years तक यूज किया और आफ्टर 8 ईयर्स जो उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी दैट इज कॉल्ड साल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पे साल्वेज वैल्यू 8,000 की। दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट केस में कैश इनफ्लोज इक्वल है 10,000 और सेकंड में कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं है। फर्स्ट 3 ईयर्स में 15,000 है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 5,000 है। So let's understand how we will calculate the payback period, post payback profitability and post payback profitability index in both the cases. In the first case, when cash inflow is equal, post payback period will be calculated by investment divided by annual cash inflow. Investment here is 50,000. So 50,000 will be divided by cash inflow. Cash inflow is 10,000 because यहाँ पर cash inflow equal है. So it will be divided by 10,000. So यहाँ पर payback period calculate हुआ 5 years. Now we will calculate the post payback period profitability. पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मींस वह प्रॉफिट जो कि हम पेबैक पीरियड के बाद अर्न कर रहे हैं। तो पेबैक पीरियड के बाद प्रॉफिटेबिलिटी का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लो इनटू एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। बिकॉज यहाँ कैश इनफ्लोज इक्वल है, सो एनुअल कैश इनफ्लो इज 10,000 इनटू एस्टिमेटेड लाइफ इज 8 ईयर्स, माइनस करेंगे इसमें से पेबैक पीरियड। बिकॉज ये हम प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? जो पे बैक पीरियड के बाद आपकी टोटल लाइफ है 8 ईयर्स, पे बैक पीरियड है 5 ईयर्स, तो बाकी 3 ईयर्स हमारे कौन सा टाइम पीरियड हुआ? पोस्ट पे बैक पीरियड हुआ। सो कैश इनफ्लोज रुपीज 10,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 5 मीन्स 3। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, so the post payback profitability is 30,000. How we will calculate the post payback period index? Post payback period index will be calculated by post payback profitability divided by total cash in outlay. So post payback profitability कितनी है? 30,000 divided by initial cash outlays 50,000 multiplied by 100. So the post payback period index is 60% बिकॉज यहाँ पे हमने पोस्ट पे बैक पीरियड इंडेक्स को परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट किया है, सो इट इज 60%। यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स जो हमने पे बैक पीरियड के बाद जितने प्रॉफिट जनरेट किए हैं ये 30,000 है, इसलिए इसको हम कैश आउटले से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस इन द सेकेंड केस। Because in the second case the cash inflows are not equal during the life of the investment, so how we will calculate the payback period? Firstly, the cash inflows in the first year are rupees 15,000. In second year the cash inflow is rupees 15,000. In third year 15,000 because first 3 years तक 15,000 है cash inflow और next 5 years में कितना है cash inflow? 5,000. So in the fourth year cash inflow will be 5,000. In fifth year that will be 5,000 and so on up to 8th year because 4, 5, 6, 7 and 8 5 years तक cash inflow 5,000 रहेगा। Hence the payback period is, payback period कितना होगा? देखिए हमारा इनिशियल कैश आउटले है 50,000, तो ये 50,000 अमाउंट जो हमने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट की है इस प्रोजेक्ट में कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगी? We will cumulate the cash inflows here. First year 15,000 plus 15,000 plus 15 plus 5. 15, 15, 15, it is 30. 30 plus 15, 45 plus 5,000. तो 50,000 हमारे कवर हो जाते हैं इस टाइम पीरियड में। मीन्स फोर्थ ईयर तक फुल 50,000 की जो कैश आउटले है, इनिशियल आउटले कवर हो जाता है। तो यहाँ पर पे बैक पीरियड कितना होगा? 4 years.
हाउ वी विल कैलकुलेट द पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी? पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लो इनटू रिमेनिंग लाइफ आफ्टर द पेबैक पीरियड। तो एनुअल कैश इनफ्लो, अब हमने एनुअल कैश इनफ्लो कौन से लेने हैं? पे बैक पीरियड के बाद। पे बैक पीरियड यहाँ पर 4 इयर्स है, 4 इयर्स के बाद कैश इनफ्लो कितने हो जाते हैं? फर्स्ट 3 इयर्स तक 15,000 है, फोर्थ ईयर में 5,000 है, तो यहाँ पर फोर्थ ईयर के बाद हमारे कैश इनफ्लोज है 5,000 और ये 8th ईयर तक मींस इसके एंड एस्टिमेटेड लाइफ तक 5,000 ही रहेंगे। सो 5,000 एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ आफ्टर पे बैक पीरियड। टोटल लाइफ है 8 इयर्स माइनस पे बैक पीरियड है 4 इयर्स, तो 8 minus 4 that is 4, so 5,000 multiplied by 4, so 20,000 is the post payback profitability. And what is the post payback period index? That will be post payback profitability 20,000 divided by initial cash outlay, that is 50,000 multiplied by 100. So post payback profitability is 40%. Now we will understand the payback reciprocal method. Sometimes payback reciprocal method is employed to estimate the internal rate of return generated by a project. Payback reciprocals can be calculated as under. Payback reciprocal कैसे calculate करेंगे? Annual cash inflow divided by total investment. If you will see, हम payback period कैसे calculate करते हैं? Payback period calculate करने का फॉर्मूला है total investment divided by annual cash inflow. अब यहाँ पर इसका opposite फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर न्यूमरेटर में आया एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, मींस उसका अपोजिट फॉर्मूला पे बैक रेसिप्रोकल में यूज किया जाता है। और यहाँ पर पे बैक रेसिप्रोकल के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय पे बैक पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसको हम परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करें, देयर इज द सेम थिंग कि पे बैक पीरियड को आपने यहाँ पर न्यू एनुअल कैश इनफ्लो आपने न्यूमरेटर में रखा डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, जबकि पे बैक पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते थे? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, और यहाँ पर इसका अपोजिट फॉर्मूला है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज. इफ वी विल कैलकुलेट इन परसेंटेज देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, मीन्स द फॉर्मूला विल बी एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. But however, this method should be used only when the following two conditions are satisfied. इस method को हम कब use कर सकते हैं? जब हमारी two conditions satisfied होती हैं। कौन सी two conditions हैं? First, equal cash inflows are generated every year. हर साल equal cash inflows generate हो, constant cash inflows हो. Second, the project under consideration has a long life which must be at least twice the payback period. जिस प्रोजेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी लॉन्ग लाइफ हो, मीन्स उसकी पे बैक पीरियड के बाद भी कम से कम ट्वाइस, मीन्स आफ्टर पे बैक पीरियड भी जो लाइफ टाइम है उसका एक लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, दैट शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के डबल टाइम पीरियड पोस्ट पे बैक पीरियड में होना चाहिए, तभी पे बैक रेसिप्रोकल मेथड को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड इन दिस इज पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड. One of the limitation of the payback period method is that it ignores the life of the project beyond the payback period. So post payback period method takes into account the period beyond the payback period. This method is known as surplus life over payback method. Payback method की एक limitation है कि payback time period के बाद जो time period है उसको consider नहीं किया जाता। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ पेबैक पीरियड के बाद आती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड में उस टाइम को भी कंसीडर किया जाता है, और जो पेबैक पीरियड के बाद का टाइम होता है उसको कहा जाता है सरप्लस लाइफ ओवर पेबैक। मींस जब हमारे प्रोजेक्ट की सारी कॉस्ट रिकवर हो चुकी हैं, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा रिकवर हो चुका है, उस टाइम पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। So according to this method, the project which gives the greatest post payback period may be accepted. तो इस मेथड में हम कैसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं? वह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है जो सबसे ज्यादा पोस्ट पेबैक पीरियड ऑफर करता है, मीन्स ज्यादा लंबे समय तक पे बैक पीरियड के बाद भी एक ज्यादा लंबे समय तक वह कैश इनफ्लोज जनरेट करता है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। द मेथड कैन बी एम्प्लॉयड सक्सेसफुली
where the various projects under consideration do not differ significantly as to their size and expected cash inflows are even throughout the life of the project. इस मेथड को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जब जिन प्रोजेक्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइज, उनका साइज एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हैं वो इवन कैश इनफ्लोज हैं, कॉन्स्टेंट कैश इनफ्लोज हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तब इस मेथड को यूज किया जाता है. Next method in improvement of traditional approach to payback method is discounted payback method. Another serious limitation of the payback period method is that it ignores the time value of money. Hence, an improvement over this method can be made by employing the discounted payback period method. पेबैक पीरियड मेथड की डिसएडवांटेजेस में हमने डिस्कस किया था कि इस मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इस लिमिटेशन को भी रिमूव किया जाता है डिस्काउंटेड पेबैक मेथड में. सो अंडर दिस मेथड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज आर कंप्यूटेड एट एन appropriate discount rate. The present value of all inflows are calculated in order of time. The time period at which the cumulated present value of cash inflows equals the present value of cash outflows is known as discounted payback period. So इस मेथड में सभी कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाती है. कैसे कंप्यूट की जाती है? एक एप्रोप्राइट डिस्काउंट रेट से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाएगी. फिर उसके बाद सभी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेट करेंगे इन ऑर्डर ऑफ टाइम, और जिस टाइम पीरियड में क्यूमुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो जाती है, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. जैसे कि हम पेबैक पीरियड में कैश इनफ्लोज की क्यूमुलेटेड वैल्यू जहां पर कैश आउटले की वैल्यू से इक्वल हो जाती है वह पेबैक पीरियड होता है, बट यहाँ पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को की प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं डिस्काउंट रेट से, और जहां पर वह क्यूमुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की इक्वल हो जाएगी कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से, उसको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कहा जाता है. सो द प्रोजेक्ट विच गिव्स अ शॉर्टर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज एक्सेप्टेड. जिस प्रोजेक्ट का सबसे कम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Calculate the discounted payback period from the information given below. And what is given here? Cost of the project is rupees 6 lakh. Life of the project is 5 years. Annual cash inflow is 2 lakh. Cut-off rate is 10%. Total cost of the project 6 lakhs given है. So कैसे हम? First of all, we will calculate the present value of cash inflows and cash outflows. Then we will calculate the discounted payback period. तो कैसे इस method में discounted payback period calculate किया जाएगा? First of all, we will put these figures in a tabular form. The data is given for the 5 years. So ये project 5 years तक चलेगा. First 5 years में cash inflows, because यहाँ पर cash inflows constant है, equal cash inflows है over a period of time. So in different years the cash inflows are 2 lakh, and we will calculate the present value of cash inflows. Discount factor यहाँ पर given है 10%. So 10% discount factor से हम present value table से इनकी values compute कर सकते हैं. तो यहाँ पर value आएगी to discount factor table से हम values find out करेंगे. For the first year at 10% discount rate value is 0.909 and so on up to 5th year. So यहाँ पर जो डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू है 0.909, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख. 2 लाख को हम इस डिस्काउंट फैक्टर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आएगी. इसी तरह से सभी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे. कैश इनफ्लो की अमाउंट को 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. उसके बाद इन सभी प्रेजेंट वैल्यूज को क्यूमुलेट किया जाएगा. लाइक इन द फर्स्ट ईयर द प्रेजेंट वैल्यू इज 1,81,800. सेकेंड ईयर में 1,81,800 प्लस तो सेकेंड ईयर की वैल्यू है 1,65,200. द अमाउंट विल बी 3,47,000. इन द थर्ड ईयर्स कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू इज 1,50,200 प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स की क्यूमुलेटेड वैल्यू है 3,47,000.
एंड सो ऑन। सो अप टू 5th ईयर हम क्यूमुलेट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज को। सो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अब हमें देखना है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहाँ पर आता है। हमारा कैश आउटले कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना गिवन है 6 लाख। तो 6 लाख कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट किस ईयर में कवर हो जाती है। इफ यू विल सी हियर in the 3rd year the cumulative present value of cash inflow is 4,97,200 and in the 4th year the amount is 6,33,800. So the payback period, discounted payback period lies between these two period, mean 3rd और 4th year के बीच में discounted payback period lie करेगा because यहाँ पर amount 6 लाख से कम है 3rd ईयर में 4,97,200 है और 4th ईयर में 6,33,800 है, that is more than 6 लाख। सो हम कैसे कंप्यूट करेंगे यहाँ पे डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। अगर 2 ईयर्स के बीच में लाई करती है अमाउंट तब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम टाइम पीरियड 3 ईयर्स 3rd ईयर में बिकॉज यहाँ पर कम है आपका कैश इनफ्लो क्यूमुलेटेड वैल्यू। सो 3 ईयर्स प्लस 1,02,800. This is the difference between these two values. Which two values? Cost of the project कितनी है 6 लाख। 6 लाख minus 4,97,200 means total cost of the project में से जितने अमाउंट 3rd ईयर में रिकवर हो जाती है 4,97,200 रिकवर हो जाता है। तो कितना डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 3rd ईयर के क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू में, दैट इज 1,02,800 divided by, we will divide this by the difference between the cumulative present value of the 2 years. तो 3rd ईयर और 4th ईयर की क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। 4th ईयर में वैल्यू है 6,33,800 माइनस 4,97,200। 3rd ईयर की जो वैल्यू है इनको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है 1,36,600। और यह अमाउंट कैसी आई है, दिस अमाउंट इज 6 लाख minus 4,97,200 means total cost of the project में से जो मिनिमम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है 4,97,200 में हम माइनस करते हैं। so, यहाँ पर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कितना आएगा 3.76 years. This is the discounted payback period means 3.76 years में total cost of the project 6 लाख रिकवर हो जाती है। This is a discounted payback period. So I hope you must have understood this method very well. In the next video we will cover the average rate of return method. So I recommend you to watch all the related videos of capital budgeting to understand the full concept of capital budgeting. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.